Good morning, students. So we were solving the back exercise of force and laws of motion, and we have finished up to question number 14. Today we'll start with question number 15. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter collide with and stick to a stationary wooden block of 5 kg. Then they move off together in the same straight line. Calculate the total momentum before the impact and just after the impact, and also calculate the velocity of the combined object. So the mass of the object, question number 15, the mass of the object is 1 kg with the velocity is 10 meter per second, and the velocity of mass of other object is 5 kg, and its velocity is 0 because the wooden block is at stationary, so its velocity is 0 meter per second. Then they move off together, means total momentum before collision. Their total momenta before collision will be equal to total momenta after collision, according to law of conservation of momentum after collision. So that is m1 u1 plus m2 u2 is equal to, now they combine together, so their combined mass is m1 m2, and let v be their velocity. So 1 into 10 plus 5 into 0 is equal to 1 plus 5 kg, 6 kg total mass हो गया, वेलोसिटी हमें निकालनी है. So 10 plus 0 is equal to 6 into v, 10 is equal to 6v, so v is equal to 10 upon 6, that is 5 by 3 meter per second or 1.67 meter per second. This is the velocity of the combined object. You have to find the total momentum of both the object before collision भी 10 आएगा, तो after collision भी 10 आएगा, and also you have to find the final velocity of the combined object, and the combined object की velocity कितनी आएगी, 1.67. Question number 16. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from velocity of 5 meter to 8 meter in 6 seconds. Calculate the initial and the final momentum, also the magnitude. So the mass of the object is 100 kg, initial velocity is 5 meter per second, final velocity is 8 meter per second, and time is 6 seconds. So initial momentum calculate करेंगे तो P1 मान लो उसको m into u, that is 100 into 5, 500 kg meter per second. Final momentum m into v, 100 into 8, 800 kg मीटर पर सेकेंड. और फोर्स निकालने तो F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. 100 into 8 minus 5 upon time is 6 seconds. So this is 100, 8 minus 5 is 3 upon 6, 3 2 is 6, 50 न्यूटन आ जाएगा. फोर्स कितनी आ जाएगी, 50 न्यूटन. ये क्वेश्चन जो है, दिस इज the question is very big, so we can discuss it later. The answer is not very big, but we can discuss it later on. First we discuss the numericals. The next question, 18th. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take the downward acceleration to be 10 meter per second square. So the mass of the bell is 10 kg. Transfer to the, when it falls from a height is given 80 centimeter. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 upon 100, 8 by 10 मीटर आ गया. And acceleration is 10 meter, downward direction में 10 meter per second square, and when it falls from the ground, so
we have to calculate the momentum. Momentum is mass into velocity. Velocity is, mass is given to us, and we have to calculate the velocity. Because the bell is falls from a height, so initial velocity क्या आएगी 0. फाइनल हमें निकालनी है. So v square minus थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे 2as. v square minus v square equal 2as. v is to find out, u 0 है, एक्सेलरेशन 10 है और डिस्टेंस 8/10 है. तो v स्क्वायर 16 आ गया, तो v जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो मोमेंटम क्या होता है बेटे, मास इंटू वेलोसिटी. मास 4, मास 1 है, सॉरी 10 है, और वेलोसिटी हमारी कितनी आई है 4. तो मोमेंटम कितना आ जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड. हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल विल ट्रांसफर? सो दिस मच मोमेंटम विल बी ट्रांसफर टू द फ्लोर when the bell hits the ground. So there is additional exercise in this chapter also. This is the additional exercise on page 130. This is page 130. The first question is of graph, so you have to compare it just. So it cannot be asked in the examination. We can discuss it afterwards. Second question. ये numerical है बेटे. A2. 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along the level ground. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? हर एक की अलग अलग फोर्स निकालने हैं. तो आसान है. मास गिवन है, मोटर कार का मास 1200 kg है और एक्सेलरेशन कितनी दी है बेटे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो F इज न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू M में आ जाएगा 1200 इंटू 2/10. तो 240 न्यूटन फोर्स आ जाएगी टोटल. तो दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय 3 पर्सन. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच पर्सन कितना आ जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच पर्सन ये आ जाएगा बेटे 240/380 न्यूटन. ये आ जाएगा बेटे. व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच पर्सन? टोटल फोर्स 240 है और तीनों पर्सन जो है इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो 80 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी. नेक्स्ट A3 देखो. ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स द नेल. द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड. व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? तो देखो क्या है, मास ऑफ द हैमर है 500 ग्राम्स, यानी कि हाफ kg हो गया बेटे. और वेलोसिटी है उसकी 50 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी 50 है. स्ट्राइक्स है नेल और द नेल स्टॉप्स, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड्स. और आपको फोर्स निकालनी है. व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर और हैमर ऑन द नेल, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे. न्यूटन थर्ड लॉ ये कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना फोर्स हैमर नेल पे लगाएगा उतना ही नेल हैमर पे लगाएगा. तो F फिजिकल टू M में लगेगा, बट A हमें निकालना है. A हम निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. V इज इक्वल टू U प्लस U माइनस V अपॉन T. U सब कुछ गिवन है और ये आ जाएगा 0.01 का मतलब होता है 1/100. तो 1/100 करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड F इज इक्वल टू M में मास है हाफ kg और ये है 5000 न्यूटन. ये आ जाएगा -2500 न्यूटन. दिस इज द फोर्स ऑफ, बिकॉज दिस इज द फोर्स ऑफ नेल अगेंस्ट द हैमर. अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन A4. A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km/h. Its velocity slowed down to 18 in 4 seconds. By an unbalanced force, calculate the acceleration and the change in momentum. Also calculate the magnitude of force. This is again very important question. Mass of motor car is 1200 kg और इनिशियल वेलोसिटी है बेटे 90 km/h. तो नेचुरली इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटे 18 km/h. तो 18 इंटू 5/18 तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. टाइम 4 सेकेंड्स है. ठीक है.
अच्छा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा, ये आ जाएगा बेटे, देखो 5 माइनस 25 अपॉन टाइम है 4 सेकेंड, तो माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए तो आ जाएगा P2 माइनस P1 m इंटू वी माइनस m इंटू यू, m कॉमन लेके v माइनस यू। मास है हमारा 1200 kg और फाइनल वेलोसिटी है 5 माइनस 25, तो यह आ जाएगा माइनस 20, तो 24,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। और फोर्स भी निकालनी है, तो फोर्स होता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और ये तो हम कैलकुलेट किया अभी, माइनस 24,000 न्यूटन है और टाइम हमारा है 4 सेकेंड, तो माइनस 6,000 न्यूटन ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन है ए लार्ज ट्रक and a car, both are moving with a velocity of magnitude v, have head-on collision and both of them halt to a halt after the collision if the collision lasts for 1 second। तो क्वेश्चन है, कहते हैं कार और ट्रक की हेड ऑन कोलिजन होती है, राइट, एंड दोनों की वेलोसिटी सेम है और हेड ऑन कोलिजन होता है, और दोनों टाइम जो है वो एक्सीडेंट जो है कोलिजन जो है वो 1 सेकेंड के लिए होता है। तो क्वेश्चन है विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स ट्रक कार को लगाएगा उतना ही कार भी ट्रक को लगाएगी। वो बात अलग है कि क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा होगा तो नुकसान कार का ज़्यादा होगा, क्योंकि कार का मास कम है। सेकेंड पार्ट है विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी दोनों का सेम होगा। ठीक है, मास ट्रक का ज़्यादा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, और कार का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी इम्पैक्ट के बाद ज़्यादा चेंज आएगा, लेकिन चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम आएगा। विच व्हीकल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर एक्सेलरेशन, ग्रेटर एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और मास किसका ज़्यादा है, ट्रक का ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, और कार का मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। वाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक, बिकॉज द मास ऑफ द कार इज लेस देन द मास ऑफ द ट्रक। ठीक है बेटे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, पेज 126. Page 126, we'll discuss only the numericals. The rest of the questions have already been discussed in some of the other form. This is the very important question, question number 3. Okay, question number 3. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with the initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. ये recoil velocity के ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी बुलेट और गन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले आएगा मास ऑफ राइफल। मास ऑफ राइफल है हमारी 4 kg, इसको हम कैपिटल एम ले सकते हैं, और मास ऑफ बुलेट को स्मॉल एम ले लो। मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम है, 50 ग्राम, ये स्मॉल एम हो गया। एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है, बुलेट की वेलोसिटी जो है, बुलेट की वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड, इसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और रिकॉयल वेलोसिटी आपको निकालनी है, रिकॉयल वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से गन वापस आएगी उसको रिकॉयल वेलोसिटी बोलेंगे। तो क्योंकि टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर, टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर। तो देखो टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर, तो दोनों चीज़ें बुलेट भी और गन भी दोनों रेस्ट पे हैं, तो टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर तो 0 होगा, और आफ्टर द फायर क्या होगा, mv प्लस mv, ये हो जाएगा, ये मोमेंटम ऑफ बुलेट और ये मोमेंटम ऑफ गन, ये रिकॉयल वेलोसिटी जो आपको निकालनी है। तो ये तो 0 हो गया। मास ऑफ बुलेट है 50 ग्राम, इसको kg बना देंगे अपॉन 1000,
और इसकी वेलोसिटी है 35 मीटर, गन का मास 4 है और इसकी रिकॉइल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो ये ऐसे हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 अपॉन 100 प्लस 4v इज इक्वल टू 0। तो इट कम्स आउट टू बी 1.75। इसको ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4v इज इक्वल टू 175 अपॉन 100, यानी कि 7 अपॉन 4 माइनस 7/4, v इज इक्वल टू -7 अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी -16 अपॉन 7। तो रिकॉइल वेलोसिटी पे जो न्यूमेरिकल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉजिक क्या है, दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर, और बिफोर द फायर हमेशा मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो इस ये स्मॉल m जो है वो मास ऑफ बुलेट और कैपिटल M मास ऑफ राइफल, और वेलोसिटी जो है ये गन की वेलोसिटी और ये गन की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गन वापस आएगी उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। जनरली ऐसे न्यूमेरिकल में रिकॉइल वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं। नाउ देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल ऑन पेज 127 and this is the question number 4. This is again based on law of conservation of momentum. Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same straight line and direction with velocity of 2 meter and 1 meter respectively. They collide after the collision. The first object moves with a velocity of 1.67. Calculate the velocity of the second object. तो हमें सब कुछ दिया हुआ है। देखो, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये 100 ग्राम है, दूसरे का मास 200 ग्राम है। पहले की वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है बिफोर द कोलिजन। और आफ्टर द कोलिजन मास तो सेम रहेगा। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 1.67 और इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये देखो 100 अपॉन ये 1000 इस करेंगे मास को कन्वर्ट करने के लिए, ये 2 है, मास 200 है, अपॉन 1000 इंटू इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी 1 है। मास तो वही रहेगा 100 अपॉन 1000 इंटू 2, बाद में 1.67 हो जाती है, 1.67 है, और दूसरे का मास तो 200 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, v2 निकालनी है। तो देखो यहाँ से 1000 कॉमन आ जाएगा नीचे, यहाँ से ये 1/1000, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, और ये 200 इंटू 1 ये भी 200 हो जाएगा। ये 100 इंटू 167 1.67 ये 167 हो जाएगा, और ये 200 v2 हो जाएगा। यहाँ से 1000 कॉमन लेके और यहाँ से भी 1000 कॉमन आएगा, ये 1000 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 400 और ये आ जाएगा बेटे 167 प्लस 200 v2। 167 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस करके 233 इज इक्वल टू 200 v2। तो v2 हो गया बेटे 233 अपॉन 200, यानी 166.5 अपॉन 100, यानी कि 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट ताकि आफ्टर द कोलिजन, यही फाइंड आउट करनी थी बेटे। एंड नाउ there are the rest page, there are some questions on page 118. We have already discussed these questions, and when you read these questions you have you will come to know that all these questions have been discussed earlier, right? No numerical is there, and देखो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर मास मोर इनर्शिया, रबर बॉल और ए स्टोन ऑफ सेम साइज। क्योंकि स्टोन का आएगा, क्योंकि स्टोन का मास ज़्यादा है तो मोर इज़ द मास मोर इज़ द इनर्शिया। बाइसिकल और ट्रेन में से ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन में 5 रुपी कॉइन का, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो, एक्सप्लेन वाई सम लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऊपर है। वाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन when a moving bus breaks to a stop and fall in the backward direction when it accelerates from the rest? Again, this is again based on inertia of rest and inertia of motion. These questions have already been discussed so many times. So I have discussed all the in-text and back exercise questions with all numericals. So now you have to complete these notes of this chapter also.
So in the next lesson we'll start the next lesson.